Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, yes, we are studying the lesson number 11, cell structure and microorganism. In that, we have seen what is the smallest and functional structure unit of the living organism, and it is cell. And then after, we have seen the microscope through which we observe the cell, and then we have seen the different type of the cells and their size. Then we have started the is studying about the cell organelles, different type के cell organelles के बारे में स्टडी चालू किया था हम लोगों ने. ओके, नाउ यस लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द cell organelles. Okay, now let's see page number 73. Now yes, there are the two pictures in figure 11.5 that shows the differences between the animal cell and plant cell. So now see the yes, what are the differences? The plant cell contain the cell wall, whereas the cell wall is absent in animal cell, whereas yes, vacuoles is large in size in the plant cell, and whereas in the animal cell vacuoles is yes short, very small in size. In the plant cell there is a presence of the chloroplast, but in the animal cell it is totally absent. And yes, in the plant cell the lysosomes are absent, but in animal cell lysosomes are present, and other parts are common in plant cell as well as in the animal cell. Now yes, let's read about the yes cell walls, plasma membrane, cytoplasm and cell organelle. So now let's see. फर्स्ट पॉइंट द सेल वॉल. सेल वॉल क्या है? ये सेल वॉल हैज़ द फोर पार्ट्स. सॉरी, सेल हैज़ द फोर पार्ट्स, नॉट सेल वॉल. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल, इसके चार पार्ट क्या है? ये सेल के चार पार्ट्स. ओके, नॉट सेल ऑर्गेनेल. Now yes, first point is the cell wall. The cell wall, the cell wall is the outermost covering of cell. It is present only in the plant cell. Next, plasma membrane. अब next part क्या है? Plasma membrane का. Plasma membrane क्या है? The plasma membrane, also called as the cell membrane, it is a kind of the thin covering. It is extremely delicate and flexible. It is the outermost covering of animal cell. Now yes, in the animal cell this is the outermost covering, but in plant cell the cell wall is the outermost covering. Now yes, cytoplasm, the liquid part in the cell present around the nucleus is called cytoplasm. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. Cell organelles are scattered in the cytoplasm. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सब के सब किस में स्कैटर्ड रहते हैं? यस, जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं? स्कैटर्ड रहते हैं. The liquid part in cell present around nucleus is called cytoplasm, and it occupies the space between the plasma membrane and the nuclear. Yes, and cell organelle and scattered in and cell organelles are scattered in the cytoplasm. Now cell organelles. अब cell organelles क्या है वो देखना है हम लोगों को कि cell organelles क्या क्या चीज़ें हैं. The mainly includes the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, mitochondria, vacuoles, plastids, etc. Plant cell contain the chloroplast. Now is cell organelles are nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, mitochondria, vacuoles, plastids, etc. Which are the common component of the plant and animal cell, and which are the different one. So now first you yes listen about the different one. Okay, matlab the different cell organelles. Okay, or you can say the difference
different cell organelles that are present only in one type of the cell, means in plant cell or in animal cell. So now plant cell contain the cell wall and it is absent in the animal cell. Golgi, yes, the vacuoles are large in the plant cell but it is small in the animal cell. Lysosomes only present in the animal cell and absent in the plant cell. Chloroplast present in the plant cell and it is absent in the animal cell. So this is the difference. And the common organelles are nucleus present in the both type of the cell, means plant cell as well as animal cell. Cell membrane is also present in the animal cell as well as the plant cell. Next one, yes, the endoplasmic reticulum present in both, cytoplasm present in both. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम लोग. क्या इज द न्यूक्लियस is the most important organelle of the cell. There is a porous double membrane around it. The nucleus controls all functions of the cell. अब क्या हम लोग ने लर्न किया कि ये इज द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल is the nucleus and it is double, its outer covering having the two layers, means it is double membrane. न्यूक्लियर कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल, और ये न्यूक्लियस क्या करता है, ऑल फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. जो इस उस सेल के अंदर होते हैं ऑल फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस. देयर इज अ पोरस, सॉरी, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्प्रॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनेल. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, स्प्रॉलिंग नेट लाइक स्ट्रक्चर है. its function is to make necessary changes in the protein produced by the ribosomes and send them to the Golgi body. और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो प्रोटीन है उसको राइजोसोम से गोल्गी बॉडी तक पहुंचाना. एंड आर मेड अप ऑफ सेपरेट फ्लैट सैक. देयर फंक्शन इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोटीन. अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करना उस सेल के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल्स विद द डबल आउटर कवरिंग. अब माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज प्लास्टिड दोनों सेल ऑर्गेनेल के आउटर कवरिंग क्या रहती है, डबल मेम्ब्रेन की बनी रहती है. एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अब जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट के अंदर वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करता है. वैक्यूल्स हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल. और जो वैक्यूल्स है वो क्या करता है, जो भी सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसको ये रिमूव करने का काम करता है. वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर स्मॉल वेयर एज देयर इज ओनली वन लार्ज वैक्यूल इन द प्लांट सेल. अब वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में छोटे होते हैं बट प्लांट सेल में क्या है, वो लार्ज इन साइज होते हैं. नाउ यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. what is meant by the microorganism? Okay, so what are the microorganism? Those living organism which cannot be seen with our natural eyes, or you can say the naked eyes, called as the microorganism. Categorize the following organism into the टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज. अब साइज के अकॉर्डिंग क्या करना है हम लोगों को, टू ग्रुप्स बनाना है इसमें. तो क्या हो जाएगा, इस अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, snail, elephant, pigeon and worms. So yes, here we can make the two groups as the microorganism and macroorganism. macro की स्पेलिंग क्या है, MACRO. मैक्रो, मैक्रो मीन्स क्या होता है, ये बिग, बड़ा साइज. और क्या है, माइक्रो मीन्स क्या है, very small size. So here in micro, the amoeba, paramecium, euglena will come under the yes micro, and yes the macro, elephant, pigeon will come under the macro organism. उसको मैक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व करेंगे. नाउ वी हैव लर्न दैट देयर आर द काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. ऑफ दीज द ऑर्गेनिज्म which cannot be seen with our eyes but can only be observed under the microscope called the
microorganism. Now you see here the question, what is the meant by the microorganism is its answer is given in this paragraph. Occurrence of the microorganism means where does the microorganisms are found. So they are found in the soil, in the water, in the rock, in the yes, in the fruits and in the air also. The microorganisms are present all around us in the air, water, soil, food, sewage, garbage, as well as in the bodies of the plant and animals. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? यस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ ये पाए जाते हैं और ईच एंड एवरी थिंग्स में ये लगभग प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल एयर में, वाटर में, सॉइल के अंदर, फूड के अंदर, सीवेज, गार्बेज, ये सभी के अंदर क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं. इंक्लूडिंग ह्यूमन, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सॉलिटरी, दैट इज दे लिव सिंगली. एग्जाम्पल, some microorganism are solitary, that is they live singly. अब ऐसे जो क्या है, ये कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या रहते हैं? ये सिंगल सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे फाउंड अलोन. ओके, वो अकेले रहते हैं, ठीक है, फ्रीली रहते, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिटरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अमीबा, पैरामीशियम, वेयर सम लिव इन कॉलोनीज, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑन रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल. अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या है? जो डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स बॉडीज होती है उसके ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब क्या करना है यहाँ पे हम लोगों को? क्या करना? ऑब्जर्वेशन करना. नाउ ट्राई दिस. कीप ए मॉइस्चर पीस ऑफ द ब्रेड और भाकरी इन द क्लोज बॉक्स. अब क्या करना है? मॉइस्चर पीस, थोड़ा सा क्या है ये जो गीला हो, ऐसे भाकरी या तो पाव या तो ब्रेड का क्या है पीस हम लोगों को 3 से 4 दिन इस क्या करना है? मॉइस्चर वाले एरिया में रखना है. ऑब्जर्व इट आफ्टर 3 to 4 days यूजिंग ये सब. उसके बाद क्या करना है? मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर 3 से 4 दिन के बाद ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ द मडी वाटर और वाटर फ्रॉम द स्टैगनेंट पडल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब दूसरी एक्टिविटी में क्या करना है? ये मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी जो है उसको स्लाइड्स पे लेकर और उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है. टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और इसके बाद योगर्ट या तो बटर मिल्क मतलब छाछ, उसको एक ड्रॉप लेकर ग्लास स्लाइड पे उसको भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है. इज योर नोट यस इन योर नोटबुक ड्रॉ द स्केचेस ऑफ द माइक्रोब्स यू ऑब्जर्व. अब इसके बाद क्या करना है? जो हमको वहाँ पे शेप्स दिखाई दे रहे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वैसे शेप्स नोटबुक में हमको ड्रॉ करना है. डू यू नो, क्या आप जानते हो? वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर इन साइज विथ आवर आइज. हम लोग क्या है 100 माइक्रोमीटर से छोटी साइज की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपनी आंखों से. सो वी मेक ग्लास स्लाइड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. However, if the magnification of the 1000 into proved to be insufficient, then we need to use an electron microscope to observe this microorganism. जब क्या है ये 1000 इंटू 1000x का जो पावर अगर इनसफिशियंट होता है, मतलब कि ये क्या है कम होता है, तो हम लोगों को उस चीज़ों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करना पड़ता है. नाउ साइज ऑफ द सम माइक्रोब्स. yes, paramecium about 100 micrometer, bacteria of typhoid 1 to 3 micrometer, poliovirus 28 nanometer. Microbes measure less than 100 micrometers. Even in these minute organisms, their organelles carry out life process within the single cell. Now yes, we have learned, yes, they are yes so small that we cannot observe with our naked eyes, but in that small size of the cell
दे परफॉर्म ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस, वो अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस क्या है उसके अंदर कंप्लीट करती। नाउ यस, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस? दोज प्रोसेस, दोज एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म इन आवर बॉडी, yes, then only we are now surviving are called as the life process. For example, nutrition, okay, nutrition process, respiration process, all these are the very essential process, and this is carried out in that smallest size of the cell of that microorganism. Nature of microorganism. Among the sketches you have drawn, do you find any of the microorganism you see below? What inferences can you draw about their size? तो now ये साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफर्स, क्या होता है वो डिफर्स होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट माइक्रोब्स का। तो इसमें पूछा है कि जो आपने इसमें ड्रॉ किया, क्या कोई भी जो आपकी स्केच है वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो रही, मैच हो रही है क्या, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। Some microorganisms like fungus that grow on branch or strands of the algae in ponds are multicellular. However, most microorganisms such as bacteria and viruses are unicellular. अब क्या बोला है ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल फंगस, वो क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। बट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria and virus, they are unicellular, means they are made up of only one cell. They have a somewhat different cellular structure, they have somewhat different cellular structure. They do not have the membrane bound organelle found in the eukaryotic cell. अब इनके अंदर क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, उस सेल वॉल के अंदर क्या है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स इट्सेट्रा, राइबोसोम्स इट्सेट्रा, जो है वो सब चीज़ें क्या अब्सेंट होती है किसके अंदर, वायरस के अंदर, जैसे कि वायरस एंड बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि क्या है यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है ये सब चीज़ें, लेकिन इनमें क्या है ये दो चीज़, ये सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड आर देयर ओनली कंपोनेंट। अब जो क्या है ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस, तो दे कंटेन द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cytoplasm and nucleoids are present. Such cells are called prokaryotic cells. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ यस, वन प्रोकैरियोटिक सेल शोन इन फिगर 11.6। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, सेल वॉल, ओके, एंड अंडर उसके बिलो क्या है ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन क्या है, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस की जगह पे क्या न्यूक्लियाइड है, एंड साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड एंड कैप्सूल एंड फ्लैजेला। Growth of microorganism. Each microorganism needs a specific environment for growth and reproduction. Many microbes need oxygen for their growth, whereas some microbes can grow without oxygen. अब देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक कि ये क्या है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इज मस्ट, बट इन सम ऑर्गेनिज्म यस ऑक्सीजन इज नॉट मस्ट फॉर their respiration. Some microorganisms survive even in extreme and absence conditions like ocean floor. अब जो ओशन फ्लोर में जो क्या है ये जो एडवर्स कंडीशंस होता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ऐसे एडवर्स कंडीशंस में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लेस पे सरवाइव करते हैं। आइस इन द पोलर रीजन, हॉट वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा। अब जो एडवर्स कंडीशन है जैसे कि ये क्या है वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट, वी नो दैट यस इन द कोल्ड एनवायरनमेंट और एट द हॉट, yes, at the
hot environment, the microorganism generally unable to survive. But there are the some microorganism that can yes survive in the very cold region and as well as yes in very hot temperature also. During adverse condition, microorganisms form a thick covering around themselves and stop their life process. अब क्या है, जब भी एडवर्स कंडीशन आता है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके सेल वॉल और या सेल मेम्ब्रेन है उसके अराउंड क्या थिक कवरिंग डेवलप कर लेते हैं एंड स्टॉप देयर प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं. एंड व्हेन द देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन, अब जब उनको फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलता है या फेवरेबल कंडीशन अगेन अचीव, दे कम आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो वो क्या करते हैं अपने उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को ब्रेक कर देते एंड कंटिन्यू देयर लाइफ प्रोसेस, और उसके बाद अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर देते हैं. व्हाट डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो, मीडियम कि कहाँ कहाँ पे वो ग्रो होते हैं, या सॉइल, वाटर, डिकेइंग मैटर एक्सेट्रा, तो ये कहाँ कहाँ पे ग्रो होते हैं, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर और जो भी डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर. एंड टेम्परेचर 25 डिग्री टू 37 डिग्री. न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल algae, chlorophyll, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. एटमॉस्फेयर, मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड वार्म, तो ये मॉइस्ट और ह्यूमिड और वार्म ये तीनों क्या है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू शेप एंड द लाइफ प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज algae, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस. अब जो लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको किस में क्लासीफाई किया, अलगी में, फंगी में, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस में. नाउ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों के लिए क्या है यूजफुल है, मीन्स प्लांट एज वेल एज ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल है. टेक द टू अर्थन पॉट हाफ फिल्ड विथ सॉइल एंड मार्क देम ए एंड बी. अब क्या करना है हम लोगों को, टू अर्थन पॉट्स लेना. अर्थन पॉट मतलब क्या है, मिट्टी का बना हुआ घड़ा, और फर्स्ट वाले में ए और सेकंड वाले में बी क्या करना, लेबल करना, नेम देना उनको. मिक्स सम वॉट वेस्ट मटेरियल लाइक गार्डन वेस्ट, डंग, फ्यूल, यस फ्रूट पील्स, वेजिटेबल स्टॉक, पेपर स्क्रैप एक्सेट्रा विथ सॉइल इन पॉट ए. अब क्या करना है, दोनों जो पॉट्स है उस पॉट में क्या करना है, वेस्ट मटेरियल्स जो हम लोगों के काम का नहीं है ऐसा वेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल गार्डन वेस्ट, दैट गार्डन वेस्ट इंक्लूड द ड्राइड फ्लावर्स एंड ड्राइड लीफ. ओके, जो ड्राइड फ्लावर्स और ड्राइड क्या है, लीव्स है वो. डंग, डंग मीन्स क्या है, ये काउ डंग और बफेलो डंग. फ्रूट पील, जो हम लोग क्या है फ्रूट्स की पीलिंग निकालते, फॉर एग्जांपल पीलिंग ऑफ बनाना. एंड फीलिंग्स ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल को छीलते उसका छिलटा, वही क्या है फ्रूट पीलिंग और वेजिटेबल पीलिंग. एंड वेजिटेबल स्टॉक, और जो क्या होती है वेजिटेबल लाइक स्पिनच और क्या है ये जो फेनुग्रीक है, तो ऐसे जो क्या है ये वेजिटेबल है उनके स्टॉक को लेना है, उनकी जो डंठल, स्टॉक मतलब क्या होती है डंठल, तो उस डंठल को लेना है. पेपर स्क्रैप, और जो क्या पेपर के स्क्रैप जो है उसको लेकर क्या करना है हम लोगों को, सॉइल सॉरी जो पॉट जिसको ए लेवल किया उसमें हम लोगों को डाल देना है. मिक्स थिंग्स लाइक पीसेस ऑफ ग्लास, scrap metal, plastic bag etc. with soil in the pot B. Keep both pots at the same spot in the garden and observe them after 3 to 4 weeks. अब क्या करना है, पॉट नंबर बी जिसको हमने लेवल किया था, इन दैट वी हैव टू टेक द प्लास्टिक, प्लास्टिक के पीसेस लेने हम लोगों को, मेटल के स्क्रैप लेना है, मेटल के छोटे मोटे टुकड़े को लेना है, और कांच के पीसेस लेना है. एंड 3 to 4 वीक के बाद क्या है, पॉट ए एज एज पॉट बी दोनों को क्या करना, ऑब्जर्व करना है. देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, क्या आपको दिखाई देगा, yes the things that are taken in the pot A will decompose, okay, and the things which are taken in pot B will not decompose. तो जो पॉट ए में जो मटेरियल्स लिया था वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है कुछ दिनों में, और जो क्या है पॉट बी में जो मटेरियल्स लिया वो डिकम्पोज नहीं होता है. ये हम लोगों को क्या है ये समझ में आएगा बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. Did the garbage in pot B remain unchanged? Yes. Where did the garbage in pot A? Yes. Where does this garbage in pot B disappear and why? Because the microorganism act on the this
waste material and convert them into the different product. That's why that disappear. Microbes present in the soil during sorry the yes microbes present in soil, dung, etc. decompose the garbage to obtain the food material. As a result, garbage is soon converted into the manure of the best quality and our surrounding are kept clean. अब देखो जो पॉटे में लिया था वो क्या हो जाता है, जो ये वेस्ट लिया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में. As in case of the garbage, for proper sewage disposal too, microbes are released into the sewage so as to help in the quick decomposition of organic compound in it. तो क्या है ये प्रॉपर जो क्या है ये वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीवेज के अंदर रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, सो दैट क्या हो जाए, yes that waste material get converted into the manure and become less harmful to the environment. Use your brain power. Why should dry and wet waste be collected separately? हम लोगों को wet और क्या है ये ड्राई वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट क्यों करना चाहिए? बिकॉज द वेट गार्बेज इंक्लूड्स द स्टॉक ऑफ द वेजिटेबल, पीलिंग ऑफ द फ्रूट एट्सेट्रा, एंड यस द स्टेल फूड, जो बासी खाना बच जाता है वो सब क्या है, क्या इंक्लूड करता है, वेट फूड. एंड दिस वेट फूड आर इजिली कन्वर्टेड into the manure by using the microorganism, मीन्स दे आर बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इजीली क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड द ड्राई वेस्ट कंटेन द प्लास्टिक बॉटल, वाटर बॉटल दैट आर yes बिस्लरी वाटर बॉटल एट्सेट्रा, एंड पीसेस ऑफ द मेटल्स, मेटल के स्क्रैप्स होते हैं. तो दिस ड्राई वेस्ट कैन बी yes reused and sent to the कंपनीज फॉर स्मेल्टिंग, उनको क्या स्मेल्टिंग के लिए हम लोग क्या है दोबारा कंपनी में बेच सकते हैं. तो इससे क्या होगा, द यस द न्यू सब्सटेंस न्यू ऑब्जेक्ट कैन बी मेड, इससे नए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं. तो देयर विल बी लेस बर्डन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा करके हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन लोड कम कर सकते हैं. एंड द ऑब्जेक्ट्स कैन बी अवेलेबल एट द चीप रेट, और जो ऑब्जेक्ट इससे बने रहेंगे इस टाइप के जो है वेस्ट मटेरियल को मेल्ट करके, वो क्या होंगे, हम लोगों को कम रेट पे अवेलेबल होगा. एंड देयर विल बी नो हार्म टू एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है ये हार्म नहीं होगा. दैट्स वाई यस वी हैव टू डू लाइक दिस, इसलिए हम लोगों को इसको सेपरेट करना चाहिए. Observe the roots of the pea, beans and fenugreek plant. What could be the function of the nodules on their roots? तो जो nodules होते हैं they provide shelter to the rhizobium bacteria, and in turn that bacteria made available the nitrogen to the that yes plant. तो वो रूट नोडल्स में जो प्रेजेंट क्या है बैक्टीरिया होती है वो उसके लिए नाइट्रोजन अवेलेबल कराती है. We have seen the some microorganism present in the soil and those in the root nodule of leguminous plant convert atmospheric nitrogen into its compound. This nitrogenous compound help to increase soil fertility and thereby the protein content of the pulses grown in that soil. Now what happens? Yes, the rhizobium bacteria helps to convert the atmospheric nitrogen into the nitrogen compound, and in turn it increases the soil fertility, and that the pulses have the more protein in them because of yes availability of the nitrogen to that plant. Now yes, one project is given to you. Visit the garbage depot near your village city. Find out the reason for burying the garbage in the large pit there. अब वहाँ पे क्यों गार्बेज को एक बड़े से गड्ढे में क्या है बरी करते हैं, उसका क्या है रीजन फाइंड आउट करना. नाउ लेट्स रिकॉल. What does your mother do to make yogurt from the milk? अभी मिल्क से तुम्हारी मम्मी योगर्ट बनाने के लिए या कट बनाने के लिए क्या करती है वो देखना है यहाँ पे. तो क्या करती है मम्मी ये से कट बनाने के लिए फ्रॉम मिल्क. तो मिल्क इज फर्स्ट बॉइल्ड एंड देन मिल्क इज yes cool down
and when it become warm, then the vinegar or yes any sour substance or the curd itself added in little amount, then the curdling start and then milk get converted into the curd. If a few drop of yogurt or buttermilk are mixed with the lukewarm milk and it is kept at that temperature for 8 to 10 hours, microbes present in the drop of yogurt quickly multiply and milk get converted into the yogurt. Microbes are thus useful for producing of the milk product like butter, buttermilk, cheese, etc. ओके तो ये क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो वेस्ट है उसको यूजफुल प्रोडक्ट मैन्योर में भी बनाने के लिए किया जाता है और जो क्या है ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए भी किया जाता है यस नाउ स्टूडेंट अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी यस स्टूडेंट इज एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट okay now yes I am ending the meeting okay now remaining part we will see in the next lecture